number out of 24. ठीक. So from Monday we are starting that doubt clearing class. So if you are interested, you can send your consent form. If your parents are agree and you are willing. Sairam sir. Sairam. Okay. So now let us begin with chanting of Omkar. And for Omkar, you all keep your audio open. है ना, अपना माइक खोल के सारे लोग ओमकार 3 बार बोलेंगे. सायराम. अच्छा, एक भजन गाएंगे आज, गाओगे क्या आप लोग? वन भजन. यस सर, यस सर. कौन सा गाना है? बोलो. मालिक तेरे बंदे हम. ए मालिक तेरे बंदे हम. प्रेयर है, गा पाएंगे सारे बच्चे? सायराम. हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? कितने लोग को आती है प्रेयर? है किसी को भी रिस्पॉन्स ही नहीं है. अनुराग. सर नेट से देख लेंगे सर इसका पूरी लिरिक्स. ओके. तो एक भजन गा लेते हैं छोटा सा. कौन सा गाएंगे? गणेश जी का कोई भजन एक गाते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर हर दिन एक भजन गाया करेंगे छोटा सा. कौन सा गाएं बताओ? गणेश जी का कोई एक भजन. किसी को गणेश जी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वन इज इंटरेस्टेड. So let us begin with the class, है ना? Okay. So now board is visible. This much part is visible to you. That is sufficient for us. So yesterday we have discussed different conditions of ratio. So I think you have solved the problems of ratio, calculation of new ratio and gaining ratio. Is there any problem in any question of new ratio and gaining ratio? No, no sir. Okay, if you find any problem, we will discuss in next class anytime, है ना? No problem in that. Next topic is valuation of goodwill. ठीक है? This valuation of goodwill is same. Methods are same. Average profit method, super profit method, and capitalization method. ना? There is no change in these methods of valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill are same. Is it clear? Sairam, you have to respond. Yes sir. Okay, so we don't have to discuss it again. We don't have to repeat it again and again. It will waste our time. All of these three methods we have already discussed in detail, है ना? So next topic is treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Okay, means what accounting entries are to be recorded for goodwill at the time of retirement or death of the partner. That is called accounting treatment for goodwill. Means what accounting entries are needed to record the goodwill at the time of retirement or death of the partner. So now you can see in admission there are 3-4 conditions. है ना? New partner can pay privately. New partner can bring his share of goodwill in cash. He may bring some amount in cash, some not, and fourth, he is not able to bring in cash. All those situations are not here. Here, treatment of goodwill is very simple. So what to do? Number 1, calculate firm's goodwill. This is the first thing.
calculate firm's goodwill is not given. अगर नहीं दिया तो इन्फॉर्मेशन दी होगी. According to the information, we have to find out the goodwill of the firm. Number 2, find out retiring only deceased partners share. Share of goodwill, है ना? Find out retiring or deceased partner share of goodwill and pass adjustment entry this is the entry gaining partners or remaining partners या continuing partners नहीं की बात है remaining partners capital account debit to retiring partners capital account है ना gaining partners capital account debit or remaining partners capital account debit to retiring partners capital account or current account whatever is the case in gaining ratio इसमें करेंगे एंट्री वाली in gaining ratio Sairam is it clear Yes, sir. ठीक है one entry one more entry is possible तो second देखिए if writing off number 2 writing off of existing goodwill writing off of existing goodwill है ना so if some goodwill is already appearing in the books of the firm that needs to be written off है ना so we have to write off the existing goodwill entry all of you know what is the entry all partners देखिए all partners bracket में including retiring partner or deceased partner all partners in bracket retiring oblique deceased partner all partners capital or current account debit all partners capital oblique current account debit to goodwill account all partners capital oblique current account debit to goodwill account ठीक है all partners capital oblique current account debit to goodwill account old ratio इसको लिखिए old ratio this entry will be passed in the old profit sharing ratio so these are the two entries maximum two entries that we need to pass for goodwill at the time of retirement or death of the partner बहुत तेज बारिश आ गई है तो आवाज बहुत तेज आ रही है इसकी हो रहा है ट्रेनिंग एवरीथिंग ओके now so this is clear two entries for treatment of goodwill first entry number 1 for adjustment of goodwill of retiring partner and second entry is optional if existing goodwill is there then we need to pass this entry okay next option
revaluation of assets and reassessment of liabilities. Now, the next situation, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Okay. %, same like revision except profit or loss on the revision. This activity profit no. This entry is same. All things are same. है ना? Revolution is same. जो आपने एडमिशन में पढ़ा है वो ये same. Again, you will not repeat it. Same topic, same process. एक एंट्री बदल जाएगी. इसमें हम लिखते थे पहले revaluation account है to old partners, है ना? एडमिशन के टाइम लिखा था old partners. अभी सारे पार्टनर ओल्ड ही है तो क्या हो जाएगा? All partners capital of the current account. So profit or loss will be distributed among all partners including retiring or deceased partner. Profit or loss will be distributed among all partners including retiring or deceased partner in their old profit sharing ratio. The profit sharing ratio will be old. Any doubt on this? Loss of the reverse continues. In case of loss, the cycle will be reversed. All partners capital of the current account direct to revaluation account. Right, Rahul? No, sir. Okay. मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्लियर रिवॉल्यूशन में सारा का सारा वैसे ही 100% सेम है ना? बस ये प्रॉफिट एंड लॉस अब सारे पार्टनर्स में बटेगा क्योंकि सारे पार्टनर्स होल्ड है. So in place of old partners, you can write revaluation account direct to all partners capital of current account. Loss of the reverse हो जाएगी entry. All partners capital of the current account direct to revaluation account. ठीक है? जनरल है ना? ये आप लोग पढ़ चुके हैं सारा. एंट्री को ये लिखो आप लोग जैसे पहले किया था सेम है. सेम लाइक एडमिशन सेम all entries are same like admission except in place of old partner now these will be distributed among all partners. No. In place of old partners now these will be distributed among all partners.
These will be distributed among all partners. So you want to write again, or is it clear to all of you? Yes, sir. Clear? Clear, sir. समझ में आ गया नहीं सबको? Yes, sir. ना जनरल लेजर जो पहले हम केवल ओल्ड पार्टनर को बांटते थे, चाहे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लेजर है, चाहे जनरल लेजर है, चाहे आपका क्या था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, द रूल इज सेम, ओनली चेंज इज दैट नाउ दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना। तो सारे पार्टनर्स ओल्ड में बार बार बोल रहा हूँ, तो दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है सारे बच्चों को? उमंग शर्मा, उमंग, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उमंग तो जोर से चला गया। अब हिमांशी, Yes, sir. अंजलि मिश्रा, Yes, sir. ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दोबारा लिखने की जरूरत है क्या एंट्री सारी? No, sir. ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और डेबिट में होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। पहले वाले 4 क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाद वाले 2 जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो इनका रूल सेम है, जस्ट लाइक द एडमिशन, बट पहले हम केवल ओल्ड पार्टनर्स को बांटते थे, अब सारे पार्टनर्स में बटेगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर। ठीक है, एंड इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आई थिंक इज नॉट इन सिलेबस। मैंने आपको भेजा था, जो किसी के पास है क्या वो पेज भेजा था मैंने आपको, जो पार्ट डिलीट किया वो भेजा था आपको, मैंने व्हाट्सएप किया था। Yes, sir. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, देख के बताओ मुझे, किसी के पास है क्या? Yes, sir. It's not in syllabus. है ना। उसके बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर है क्या? आरसी पूरा पढ़ो जरा, ये क्या क्या इसमें हटाया है इस चैप्टर से? Sir, adjustment of capital and preparation of loan account of the retiring partner, preparation of deceased partner's capital account and his executor's account. अगेन रिपीट। Adjustment of capital, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया, चलो दूसरा। preparation of loan account of the retiring partner, हाँ, लोन अकाउंट नहीं बनाना। तीसरा, preparation of deceased partners or retiring partners capital account and his executor's account. अच्छा, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को एग्जीक्यूटिव अकाउंट में हटा दिया, तो रिटायरमेंट तो खत्म ही हो गया, पूरी डेथ तो खत्म ही हो गया लगभग। अगर एग्जीक्यूटिव रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था ना उसमें, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दिया ना, Yes, sir. तो रिटायरमेंट डेथ में तो कोई बचा ही नहीं, फिर इसका मतलब ही हो गया। चलो ठीक है, सर एक डाउट था सर। हाँ जी बोलो। सर रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटाया सर, एडमिशन का सर? सर शायद रिटायरमेंट का है शायद सर, कंफर्म नहीं था मेरे को। नहीं, दोनों नहीं में। सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरिंग से हट गया है। और एडमिशन में? सर एडमिशन में भी नहीं है शायद, एक मिनट सर मैं उससे चेक करके बता। सर एडमिशन, सर एडमिशन में भी नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और सर, वो रिटायरमेंट किसी में एंड डेट नहीं ऑफ द पार्टनर में भी नहीं है। सर वो किसी में भी नहीं है। हाँ, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ा नहीं था इसके एडमिशन में ना, छोड़ दिया था हम लोगों ने इसलिए। अच्छा, बैलेंस शीट तो इसलिए बना के दिखाई कि बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए हम लोग को, एग्जाम में भले ही नहीं आती है वो बाद में, बट वी शुड नो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, है ना। तो एडमिशन बैलेंस शीट बनाने में कोई अलग से टाइम नहीं लगता, एक्स्ट्रा वो नहीं है उसका, कोई अलग से पढ़ाई नहीं करना आपको, कोई सेक्शन समझना नहीं है, केवल जो पुरानी असेट्स है उसमें चेंज करके लिखना होता है हमको, है ना। तो हमने बैलेंस शीट तो इसमें ही बनाएंगे, हमको भले दिया नहीं है, लेकिन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द बैलेंस शीट, है ना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो समझेंगे हम लोग, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करेंगे, लोन अकाउंट नहीं पढ़ेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर का देखते हैं, उसमें डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो छोड़ देंगे, उसमें क्वेश्चन आएगा नहीं शायद, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, उसमें रेशो आएगा, पर वो नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहले तो हम इसकी प्रॉब्लम करते हैं। तो
इसके बाद जो है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें लिखिए आप लोग, whenever a partner retires from the firm, whenever a partner retires from the firm, first of all, we have to find out, amount payable to the retiring partner. First of all, we have to find out amount payable to the retiring partner. This we can calculate. By preparing retiring partners capital oblique current account. This we can calculate by preparing retiring partners capital oblique current account. Next paragraph में लिखिए, in practice normally in case of retirement we prepare all partners capital accounts. Including retiring partner. We prepare all partners capital accounts including retiring partner. Full stop. After writing all the items to the debit side and credit side, after writing all the items to the debit side and credit side of partners capital account, to the debit side and credit side of partners capital account, we calculate the balance. And the balance in retiring partners capital account, is the amount payable to him. Balance in the retiring partners capital account is the amount payable to him. तो मैं आपको, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, we write all the items in the credit side, capital, ना adjustment of premium, profit or loss on devaluation, general reserve, all items we record in the credit side. Similarly, in debit side, we debit the profit and loss, debit balance, loss on devaluation. We also debit
if goodwill is to be written off, so after writing all these items we calculate the balance, है ना? ये करते हैं ना, अभी आपने किया था एडमिशन में भी, सायराम? Yes, sir. तो जो बैलेंस निकलेगा, अभी तीनों पार्टनर ए बी सी सपोज करो और ए रिटायर हो गया, ए का जो बैलेंस अभी आएगा वो that is the amount payable to A, है ना? So whatever is the balance in the retiring partner's capital account after writing all the items, that is the amount payable to A. तो अब जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनमें तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट, है ना? सपोज ए बी सी तीन पार्टनर हैं, बी और सी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ए रिटायर हो गया तो ए में हम बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे, बिकॉज ए विल नॉट बी द पार्टनर इन द फ्यूचर. ए हैज बीन रिटायर्ड, सो ही विल नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म. So in each capital account, we will not write to balance sheet. In place of balance sheet, what to write, that depends on which method of payment is used, है ना? क्या यूज किया उसके हिसाब से हम लिखेंगे. तो क्या हो सकता है पहले समझ लो. हो सकता है फर्म उसको कैश पेमेंट कर दे, if sufficient cash is available, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इसमें अमाउंट में आ जाएगा डेबिट में टू कैश अकाउंट, जहाँ बैलेंस लिखते हैं वहाँ टू कैश अकाउंट हो जाएगा. ठीक है. अगर बैंक में बैलेंस है तो चेक से पेमेंट कर सकती है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर कैश भी नहीं है और बैंक में भी पैसा नहीं है तो फर्म उसके अकाउंट को जो अमाउंट पेबल है दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो वहां लिखेंगे टू एस लोन अकाउंट या बीस लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसका लोन अकाउंट लिखेंगे. सो थ्री ऑप्शंस आर देयर. अमाउंट कैन बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन कैश, amount can be paid to the retiring partner by check, or if cash or bank is not available, sufficient funds are not available, his amount payable will be transferred to his loan account that firm can pay in future. उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और वो फर्म का जब पैसा आएगा तो फ्यूचर में पेमेंट करेगी. By that time this loan account of the retiring partner will be shown to the liability side of balance sheet. अब उसका कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बैलेंस शीट में क्योंकि पार्टनर नहीं रहा. अगर उसको पेमेंट नहीं किया तो उसकी जगह उसका लोन अकाउंट आएगा. समझ रहा है आपको? सायराम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट नाउ वी विल शो हिज लोन अकाउंट. अगर उसको पेमेंट कर दिया तो कुछ नहीं दिखाएंगे. अभी जैसे नया पार्टनर आया तो कैश लेके आता था, प्रीमियम लेके आया, कैपिटल लेके आया, तो हम कैश में ऐड करते थे. आप रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश पेमेंट कर दिया तो हम कैश से माइनस करेंगे, है ना? वो कैश में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. If cash is paid, it will be subtracted from cash in the balance sheet. If it is paid by bank, it will be subtracted from bank. And if it is transferred to the loan account, then it will not be subtracted from cash and bank. Loan account will be shown to the liability side of balance sheet. ठीक है? सायराम? तो आप लिखिए इसमें. Yes, sir. पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर लिखो इसमें. Any of the following methods can be used. Any of the following methods can be used to make payment. Any of the following methods can be used to make payment to the retiring partner. To the retiring partner. Number one, cash payment to retiring partner. Cash payment to retiring partner. एंट्री लिखिए. रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट retiring partners capital account debit to cash account. एक एंट्री लिख लो तो क्या लिखना, ऑब्लिक टू बैंक कर लो. रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक टू बैंक अकाउंट, है ना? दो एंट्री के एक एंट्री में काम हो जाएगा. आपको ऊपर लिख दो क्या लिखा हमने, एक पेमेंट इज मेड इन कैश और बाई चेक. ऐसे कर दो, पेमेंट इज मेड इन कैश और बाई चेक. ठीक है. कैश से पेमेंट करेंगे तो टू कैश अकाउंट और चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट. इतना तो समझ में आता है सब लोग को. ठीक है साईराम? Yes, sir. ठीक है. अब दूसरा लिखिए. इफ नंबर 2, इफ फर्म
does not have sufficient cash or bank balance इससे पहले एक नोट लिख लो ऊपर जो आपने एंट्री लिखी मान लीजिए नोट लिखी ऊपर इफ retiring partner is paid in cash or by check retiring partner is paid in cash or by check comma this amount will be subtracted from the cash or bank balance in the new balance sheet will be subtracted from cash or bank balance in the new balance sheet. ठीक है, अब अगला जो लिख रहे थे नंबर 2 if the firm does not have sufficient cash or bank balance comma amount payable to retiring partner will be transferred to his loan account. Amount payable to retiring partner will be transferred to his or her loan account. Amount payable to retiring partner will be transferred to his or her loan account. Entry लिखिए retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. Retiring partners capital account debit to retiring partners loan account. इसे लिखिए retiring partners नोट लगा दीजिए retiring partners loan account will be shown to the liability side of new firm's balance sheet. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए if nothing is given in the question about payment to retiring partner comma we will transfer the amount payable to him to his loan account. If nothing is given in the question about payment to retiring partner, we will transfer the amount payable to him to his loan account. ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो हम उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ऐसा भी कर सकते हैं आप देख लेना क्वेश्चन में, अगर कैश है सफिशिएंट तो आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया तो हम अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली कैश उतना होता नहीं है पर में, तो हम क्या करते हैं उसको वी ट्रांसफर इट टू हिज लोन अकाउंट. ठीक है, सो दैट वी कैन डू अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको सहीराम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब हमारे पास इसमें कुछ नया टॉपिक नहीं है, अब इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, है ना. ऑल टॉपिक्स आर नाउ कंप्लीटेड अबाउट द रिटायरमेंट, सो वी हैव टू प्रैक्टिस रेशियो, दैट मींस फाइंड आउट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. अच्छा, एक अभी सीबीएसई ने एक नया कैलेंडर बनाया, उसको बोलते हैं
ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, है ना। सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस दिया ना, कम करके कैसे कम करके बात कर रहे हैं वो लोग, वो समझ लो थोड़ा सा। उन्होंने बनाया ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। तो जो एकेडमिक कैलेंडर हमारा नॉर्मली हम फॉलो करते थे, उसका ऑल्टरनेटिव दिया। उसमें एक्सप्लेन किया कि हाउ कैन बी कंप्लीट द सिलेबस गिवन सिलेबस, जो हटा दिया उसके अलावा जो बचा हुआ सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो वो क्या मतलब उसका, उनका कहना है कि जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 चैप्टर में आ रहा है ना, बल्कि 4 में आ रहा है। किस किस में आपका, उसमें भी आया था फर्स्ट चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, फिर एडमिशन में भी आया, फिर रिटायरमेंट में भी आया, फिर डेथ में भी आएगा। तो रिवैल्यूएशन इज सेम इन ऑल प्लेसेस। तो व्हाई टू टीच रिवैल्यूएशन फॉर 4 टाइम्स once the concept is clear, student can बना सकते हैं ना आप लोग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 4 बार 4 चैप्टर में बार बार वही चीज लिखाना जरूरी है कि एक बार में हो सकता है वो। सही राम 100% सेम Yes, है sir. ना। Yes, sir. तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नो चेंज इन एनी चैप्टर, चाहे वो एडमिशन का चैप्टर है, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर है, चाहे चेंज इन, तो व्हाई शुड बी वेस्ट टाइम इन राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। आपको समझ में नहीं पाया तो दोबारा एक्सप्लेन कर दो उसको, समझ में नहीं आता है करना होगा। सेम थिंग इज नॉट टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। आप देखेंगे तो मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि पहला चैप्टर आपने थॉरोली पढ़ लिया, एडमिशन पढ़ लिया, तो बाकी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत आसान है ना। सो नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गुडविल का तो आपको आते ही वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी इसमें। रिजर्व एंड सरप्लस को तो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, पर एंट्रीज की प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको उसमें ना। एंट्रीज भी आते हैं एग्जाम में, तो डोंट डिपेंड ओनली ऑन अकाउंट्स, जनरल एंट्रीज भी आती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि एक क्वेश्चन में पूरा एंट्री पूछी, लेजर अकाउंट पूछे नहीं उनको। सो वी शुड आल्सो नो हाउ टू पास द एंट्रीज इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है। और फिर हम मेन क्वेश्चन करेंगे। इसके हिसाब से तो हमको केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम लोग बैलेंस शीट भी प्रैक्टिस कर लेंगे। बैलेंस शीट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल है, तो हमको समझ में आया कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सही राम जैसे वो कुछ लोग बात होती है ना कि खाना खाने के बाद मीठा खाना, उसको बिना संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसे हम लोग को आदत पड़ी है कि बैलेंस शीट बनाई होना वो अच्छा नहीं लगता ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो अधूरा अधूरा लगता है। तो बैलेंस शीट जब बना लेते हैं तो लगता है कंप्लीट हो गया। एग्जाम में नहीं आया कोई बात नहीं, हमारा टाइम ही वेस्ट नहीं होगा उसमें बहुत ज्यादा। कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके, तो उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो टाइम हो रहा है आपका, तो आप अभी कल छुट्टी है तो कल प्रैक्टिस कर लो इसका। कोशिश करना, इसके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं इसके क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के भी। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मंडे से हम लोग, मंडे को मेरी क्लास होती है कि नहीं होती आपके? मंडे आई डोंट हैव क्लास, है ना। आज जो टाइम टेबल भेजा उसमें तो नहीं है मंडे को मेरी क्लास, देखा कि आपने आज एक नया टाइम टेबल भेजा है ऑनलाइन क्लासेस का। सही राम सही राम No, sir, नहीं है। ऑडिबल, मंडे को ठीक नहीं है। सर अच्छा, और एक चेंज हो गया वो, एक चेंज हो गया वो पता चल गया होगा, हमारी ऑनलाइन क्लास है वो 2 बजे से हुआ करेगी 1:30 के बजाय। बाकी सब वैसा का वैसा है, टाइम टेबल चेंज हुआ है, 1:30 की जगह 2 बजे चालू हुई, तो पीरियड टाइम वही है 2 से 2:40, 3:40, 4 से 4:40, है ना। सो दैट विल बी सेम, ओनली वन शिफ्ट दैट टाइम फ्रॉम 1:30 टू 2 PM हो गया है। 1:30 की जगह 2 PM हो गया, क्योंकि इधर ऑफलाइन के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, तो उसके उसको थोड़ा एडजस्ट किया है, ठीक है। साई राम, लेट अस हैव शांति पाठ देलिकुल्ली। शांति शांति शांति। सही राम। सर जी, सर जो 21 से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मतलब ऑफलाइन, तो अगर उसमें कोई नहीं आ पाता है तो फिर सिलेबस आप आगे बढ़ाएंगे या केवल डाउट क्लियरिंग होगी? आगे नहीं पढ़ाएंगे तो आगे कैसे पढ़ा सकते हैं जब वो बच्चे क्या नाम है, सारे नहीं होंगे, इसलिए कैसे पढ़ा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, ओके सर, है ना। ओके सर, आगे वही तो कंफर्म करना आगे था। पढ़ा सकते हैं। उसमें तो वही है कि पुराने टॉपिक में कुछ नहीं आता तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू।